We are 32 of us right now, and I think that's a fair number to start. And members, you all know Ila Sharma. She has been very active in our society and helps out as a judge of the garden show and the main show, and also has been doing very good sessions on her specialty of bulbs and other related areas. So today we are lucky we have her here on a topic which everybody wants to know about, especially in this season. Abhi hum prune kar le, abhi hum cutting kar le, abhi hum disbud kar le. And one person I find not here is Anuja Sehgal. Nisha, would you check if Anuja has joined us? Because she did the basic gardening course of soil mein. Us soil chapter mein she is asking for adenium ka potting mixer. So that's how it suddenly struck me that let's have Ila ji to do the honors and tell us all about adeniums. And I hope, Ila ji, you'll be sharing that annual calendar of yours, the USB. That all depends how the audience takes the lesson, actually, the session. They have to answer. It's not my calendar. It is their checkup. How have they? That is the follow-up for them. उन्होंने कैसा attend किया? We have got very good attendance. I can see a lot of members who don't join, otherwise are also on screen. I can see their videos. Thank you. I really, from my bottom of my heart, I'm thankful to them. Anjito, please, over to you. Adeniums, how to handle them throughout the year, and which is the time to look out for their flowering, profuse flowering. Over to you. Yeah, I'm going off the video. आप बनी रहेंगी ना वैसे? हाँ हाँ हैं. हाँ. Mute everyone. Deepa, you mute everyone. So I'm doing that. Yeah, sure. Thank you so much, Deepa ji, बुलाने के लिए और इतना मौका देने के लिए कि ये जो मेरा सबसे प्रिय, this is one of my favorite plants. I really adore adeniums. क्योंकि इतने स्वीट से कुछ कहते नहीं है, पता नहीं वाई लोगों को एक टैबू सा हो गया है कि एडेनियम ऐसा है वैसा है, रॉट कर जाता है, पानी कैसा रखें, वो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स. आप इस बात को मान के चलिए. तो जो फ्रेंड्स मेरे घर आते हैं ना, वो कहते हैं इला जी आपके इतने खूबसूरत कैसे हैं, हमारे ऐसे क्यों नहीं है. तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमारे ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में जो मैं बताऊंगी, again I'll say Deepa will start smiling and laughing also maybe, कि please take the notes. Then you will not very often have to come and ask कि अब इस season में इसका क्या करना है, pruning कब और कब नहीं, all the questions that Deepa ji has come forward with. You will not have to go through the questions again and again from the experts. You will be an expert yourself. So पूछते कहते हैं कि इला जी आपके इतने अच्छे कैसे, कॉडेक्स इतना अच्छा कैसा है, इसका फॉर्मेशन इतनी कॉम्पैक्ट कैसी है आपके. तो हमको तो बरसाते जैसे अब ट्रेमेंडस रेन्स वर हियर दिस टाइम, तो कैसे इतना हो गया कि अंदर रखने पड़ते हैं. पर आप 1 2 4 10 गमले भी होंगे ना तो आप अंदर रख सकते हैं. दीपा, वुड यू गिव मी द फुल स्क्रीन प्लीज. लेकिन अगर आपके पास ज्यादा गमले हैं, 25 30 4-5 दर्जन गमले हैं, तो आप उनको, और मे बी पीपल हैविंग माने टेरेस फुल ऑफ एडेनियम्स, सो उनको आप अंदर कैसे रख सकते हैं, दैट्स माय क्वेश्चन. सो आपको ऐसा करना है कि आप भी अपने पौधों को 12 महीने बाहर रख सकें. दैट इज द चैलेंज एंड दैट इज द आर्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. सो और कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं, वो कहते हैं अच्छा इला जी ये बताइए कि हम क्या करें कि हमारे पौधे भी इतने अच्छे हो जाएं. सो ये बात समझ में आती है कि यू वांट टू नो, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू टेक द चैलेंज कि हमारे पौधे भी इतने अच्छे होने चाहिए. तो इन सब बातों को कैसे करना है, तो वील टेक सम पॉइंट्स. यू कैन नोट डाउन व्हाट विल डिस्कस अबाउट टुडे. इज सॉइल ऑफ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस, पॉट्स, गमले कैसे होने चाहिए, and then the most important factor, everything is related, and you know everything for which pointers I'm telling you are important for adeniums. हम कहें बहुत important है, कम important है, ऐसा सब ही बहुत important है. तो soil, pots, watering, what is very crucial, and then light.
प्लांट्स के लिए ये 3-4 चीजें ऐसी होती है ना, लाइट हो गया, पानी हो गया, एंड न्यूट्रिशन, फीड, फर्टिलाइजर उनको आपको उन्हें कैसे देनी है, न्यूट्रिशन, एंड देन द सीजन, एंड देन जैसे अभी दीपा जी ने कहा मैनेजिंग द शेप एंड ग्रोथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉट से। इसके लिए रिकमेंडेड है क्ले, टेराकोटा पॉट। प्लास्टिक में मत लगाइएगा, कभी भी मत लगाइएगा। आप इसमें लगा सकते हैं, सीमेंट में बेशक थोड़ा वो पोरस होता है, आप सेरेमिक में भी लगा सकते हैं, दे कम आउट गुड, बट बेस्ट वुड बी टेराकोटा पॉट्स। आप ढूंढिए कहीं जो मजबूत मिलते हो, क्योंकि आपको हर साल इनकी रिपोर्टिंग करनी है, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर। तो अगर आप टेराकोटा पॉट में लगाते हैं तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोरस होते हैं, they allow evaporation, and through what? Pot walls, उनकी वो पोरोसिटी जो है, सॉइल मटेरियल जो है, क्ले जो है, वो इवेपोरेशन करता है, इवेपोरेट करता है पानी को। उससे क्या होता है कि गर्मियों में आपका जो पौधे की जड़ें हैं वो ठंडी बनी रहती हैं। और हमारे दिल्ली का जैसा कि टेम्परेचर होता है, यू ऑल नो, 45 से एक्सीड ही करता है। 45 अगर आपके वेदरमैन बता रहा है कि 45 है, तो आपके टेरेस पे इट इज नॉट लेस देन 47 to 48 degrees, because all the cement and concrete walls, those absorb the heat in the daytime, they release it by evening. When you water your plants, you must be seeing कि कितना उसमें से स्टीम जैसा निकलता है बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पौधों को ठंडा रखने के लिए क्ले का, टेराकोटा पॉट्स का इंतजाम करें। आपकी जो, अगर जैसा मैंने बताया, आप प्लास्टिक के या सीमेंट के या और किसी मटेरियल के पॉट्स को यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो जड़ों को ठंडा नहीं रखेंगी और उसमें वाटर लॉगिंग होने का भी बहुत खतरा बना रहता है। वो प्लास्टिक जो है आपकी गर्म हो जाएगी, आप जब उसमें पानी डालेंगे तो गर्म होने से आपके जो जड़ें हैं वो भी गर्म होंगी, क्योंकि उसकी दीवार से वो चिपकी हुई हैं, और इवेंचुअली जड़ों के खराब होने से, गर्म होकर जलने से आपका पौधा भी खराब हो जाएगा। जब भी हम पानी डालते हैं ना पौधों में, तो what happens? The water, when we put water, it goes down to the roots, and then the root takes all the food and then supplies it to the various parts of the plant. That is how the plant grows. तो जितना आप उसमें जितनी बार पानी डालते हैं, उतनी ही बार प्लांट अपना न्यूट्रिशन ऊपर ले जाता है और सारों में फैलाता है। तो अगर हम पानी ही कम कर देंगे, उसको ड्राउट कंडीशंस में रखेंगे, तो आपका प्लांट जो है अच्छी तरह ग्रो नहीं करेगा। उसकी फॉलिएज, उसके फ्लावर्स, उसकी ब्रांचेस, उसकी जो शेप है, वो आपको डिजायर्ड जो है वो नहीं मिलेगी। तो वाटरिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो आप जब पानी देते हैं तो वो आपका उसी में जमा ना रह जाए, इसके लिए बार बार मैं अगेन आई से ट्राई टू गेट very good quality terracotta pots and use them. अगर आप इनिशियली एक बड़ा गमला इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो कॉडेक्स और टैप रूट है वो लंबी हो जाती है। मैंने देखिए ये सिरेमिक का है और छोटा गमला है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसकी जगह एक 10 इंच का गमला लिया होता, मान लीजिए, तो इसकी जो टैप रूट है वो बहुत लंबी हो जाती, लाइक शेप ऑफ से रेडिश, और वो क्या कहेंगे उसको, कैरेट, उसकी तरह से ये इसकी टैप रूट लंबी हो जाती। एंड एडेनियम्स डोंट लुक गुड इन अ बिग लॉन्ग पॉट, वो हमेशा अच्छे लगते हैं बोनसाई टाइप के शैलो ब्रॉड टॉप्स पॉट्स में, जिनका जो टॉप है वो ब्रॉड हो और हाइट
कम हो. Why? Because the beauty of this plant is the caudex and the short and the firm growth of the plant. अगर आपका प्लांट बड़े गमले में होएगा, लंबे गमले में होएगा और फिर वो लंबा चला जाएगा तो उसकी गेटअप इतना अच्छा नहीं आएगा. क्योंकि इसका जो एक रिलेटिव आप देख के चलिए तो ऐसा लगता है कि ये जैसे बोनसाई हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आप बोनसाई को मद्देनजर रख के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अडेनियम के लिए आपको किस तरह के फॉर्मेशन की जरूरत है और उसके लिए हमें किस तरह के पॉट की जरूरत है. तो अगर आपने शुरू से ही बड़े गमले में लगा दिया या मान लीजिए आपने जमीन में ही लगा दिया तो क्या होगा, आप कहोगे अब भाई इतना अच्छा कॉडेक्स तो नहीं बन रहा है इसमें और दिख भी नहीं रहा है, तो लाओ अब मैं इसको ट्रांसफर करूं शैलो में. Then it becomes very difficult because the taproot you will have to cut and that may damage your plant and it may die also. So कभी भी अपने अडेनियम को शुरू से ही बड़े गमले में न लगाएं बल्कि छोटे गमले में लगाएं, जिससे कि उसका जो आप देख रहे हैं ये इसका बल्ब का भी इसमें थोड़ा सा ये कॉडेक्स भी है जो ये बनने लग गया है. इतना छोटा ये है, अभी हार्डली 6 inches है, but the codex has started forming and this is hardly 1 year old plant. So अब अगर मैं चाहूं तो इसको एक शैलो ट्रे में ट्रांसफर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी इसको नहीं करूंगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो इसलिए हम लोग इसको शैलो पॉट में ही, छोटे पॉट में ही लगाएंगे टू स्टार्ट विद. एंड देन जब हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग करना, तो रिपोर्टिंग अवॉइड इन विंटर्स. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सक्युलेंट एंड ऑल दिस इज वाटर इनसाइड हियर. ये तो बहुत पतली, आपने देखा होगा, मोटी होती है. अभी एक मैं बड़ा पेड़ आपको दिखाऊंगी. दीपा जी ने कहा था एक लेके आइएगा, सैंपल करिए और उसमें भी बताइएगा कैसे करते हैं. तो ये जो इसकी पूरी कॉडेक्स है, पूरा ये स्टेम सिस्टम है, दिस इज ऑल फुल ऑफ वाटर. इट्स अ डेजर्ट प्लांट, रोज ऑफ डेजर्ट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यू नो, आपने देखे ही होंगे. और आजकल तो क्या क्या रंग आए हैं जो ग्राफ्टेड आते हैं उसमें. तो ये जाड़ों में जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है. तो डोंट एवर ट्राई टू रिपोर्ट इन सितंबर और अक्टूबर, जब नाइट टेम्परेचर आपका ड्रॉप करने लगता है. इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, छेड़िएगा भी नहीं, चाहे जिस भी कंडीशन में है. हाँ, अनलेस एंड अनटिल ड्यू टू दीज हेवी रेन्स अगर आपका कॉडेक्स या प्लांट खराब हो रहा है, then of course you will have to do the operation on it. But otherwise, if the plants are doing good, do not repot them in October onwards till March beginning. वो इनका डोरमेंट पीरियड होता है, उसमें आपको उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है पौधे को, बल्कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. क्योंकि जब जो चीज डोरमेंसी में होती है तो वो ग्रोथ में नहीं है, तो उस पे पेस्ट और डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट जो है वो काम नहीं कर रही है उस समय. तो उस समय आपको उसका पौधे काटने का बहुत ध्यान रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ पॉट. नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट अनदर फैक्टर, सॉइल. इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए? जैसे कि मैंने अभी कहा, फ्रीक्वेंट वाटरिंग. तो आप कहोगे जी, एक तरफ तो आप बताते हो फ्रीक्वेंट वाटरिंग, दूसरी तरफ कहते हैं इसमें पानी भरा हुआ है, और तीसरी तरफ कहते हैं इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है, सब तीनों जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है. पानी है, लेकिन हमको सॉइल इसकी ऐसी बनानी है जो अच्छी पोरस हो और पानी जिसमें बिल्कुल भी रुके नहीं. क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है, आप देखते हैं वहां क्या होता है, सैंड. जब भी बारिश होती है, खूब झमाझम बारिश होती है और पानी बिल्कुल भी वहां पे रुकता नहीं है. तो उससे क्या होता है कि जितना पानी इसकी जड़ों को एब्जॉर्ब करना होता है वो वहां पे कर लेता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो पॉट बाउंड है. सो रेगुलर पानी हम लोगों को उसमें देना पड़ता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए. तो क्या होता है कि इसकी सॉइल हमको बहुत ज्यादा पोरस बनानी है. अभी क्या हो गया है कि बहुत लोग कहते हैं कि इसमें आप वो खंगर मिला लो. इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया, क्योंकि खंगर में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा. लेकिन व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आप कहोगे ये बहुत रिपीट करती हैं अपनी बातों को, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताऊं
कि जो कुछ भी हम आपसे बताते हैं वो सब आई हैव गॉन थ्रू. It's my personal experience which I share with you, nothing new. I keep reading, but most of the time I share my personal experience with you. तो जो कहते हैं कि आप खंगर में लगा लीजिए, उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है ना, 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हम लोग बाहर चले गए. अब खंगर में बिल्कुल भी वाटर रिटेंशन नहीं है, तो हो सकता है फिर कि आपका पेड़ पानी ना मिलने से क्या हो कि वो बिल्कुल सूख जाए. तो इसलिए आप जो सॉइल मैं यूज कर रही हूँ, आई विल लेट यू नो दैट सॉइल, आपकी मर्जी है, आप उसमें थोड़ा सा अगर खंगर मिला सकते हैं तो मिलाना चाहें तो आप जरूर उसमें मिला लीजिए. अब पोरोसिटी क्यों जरूरी है? पोरोसिटी जरूरी है बिकॉज इट हेल्प्स द रूट फॉर्मेशन इमेंसली, क्योंकि पोरस है तो उसकी रूट्स जो है वो बहुत आसानी से उस मिट्टी में फैलती जाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है. अगर आपका क्लेई सॉइल होएगा या थोड़ा हार्ड सॉइल होएगा जिसमें रूट्स ठीक से नहीं फैल पाएंगी तो भी आपका पौधा जो है वो मरने को हो जाएगा. एडेनियम्स को न्यूट्रिशन बहुत पसंद है, और होता क्या है, when the soil is porous you keep watering it and then all the nutrition, most of the nutrition is leached out by the bottom hole. तो इसको हमें बार बार न्यूट्रिशन देना है और बार बार पानी भी इसको हमें देते रहना है. दोनों काम हमको साइमल्टेनियसली इसके लिए करते रहने पड़ेंगे. So the composition of the soil should be such, जो मैं यूज करती हूँ, आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. काउ डंग 10 kg, बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, ठीक है. फिर ये आपका जो चारकोल या जो सिंडर है या क्या नाम है इसका, अभी मैंने बोला खंगर, ये भी आप 10 किलो ले सकते हैं. पहले हम लोग लेते थे राखी, ये भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो फर्नेस में से निकलता है. तो पहले हम लोग राखी यूज करते थे, वो भी बिल्कुल वाटर रिटेंशन उसमें नहीं होता है, पोरस है बिल्कुल. दैट इज नॉट एश बट दैट इज कॉमर्शियल, जो भट्टियों में से निकलती है वो एश होती है वो, और उसको भी आप 10 किलो ले लीजिए. देन बोन मील 200 ग्राम्स, नीम की खली वो भी आप 200 ग्राम ले लीजिए. क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको बहुत अच्छी खुराक की जरूरत है, तो हम इसमें थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिला देंगे. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, सीवीड यूज कर सकते हो आप, देवी दयाल, आप देवी दयाल शक्ति यूज कर सकते हो, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप यूज कर सकते हो. और फिर आता है कोई भी आप पेस्टिसाइड इसमें जरूर ऐड करें, जो सिस्टेमिक कोई भी पेस्टिसाइड और फंजिसाइड आप इसमें जरूर डालें, क्योंकि इसकी जो सकलेंट की टेंडेंसी है वो होती है अधिक पानी से रॉट करने की, बहुत जल्दी खराब होने की. तो हमको जड़ों में ही जो है इसको बचाव करना है सबसे पहले. तो हम लोग इसमें थोड़ा कोई भी बैवस्टीन या आपका M45 डाइथेन, आप जो भी आपको अवेलेबल हो उसको आप डाल सकते हैं. वो डालना है आपको 200 ग्राम. तो इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से पहले से आप बना के रख लीजिए, कम से कम 3 हफ्ते पहले. माने अगर जाड़ों में आप इसको बना लेते हैं नवंबर दिसंबर में, तब हम लोग इसकी जो रिपोर्टिंग करेंगे अपनी प्लांट्स की, फरवरी ऑनवर्ड्स जब इसका ग्रोथ शुरू होता है समर के ऑनसेट के ऊपर, तब हम उस सॉइल को यूज करेंगे. आते हैं कि आपकी पहचान, ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, इनको कैसे कैसे इनका यूज क्या है और क्या ये लोग इनका क्या करते हैं ये आपके लिए. तो काउडंग जो होगी बहुत ही अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, वेल रॉटेड काउडंग मैन्योर. ऑलवेज यूज द वर्ड वेल रॉटेड. सो व्हाट इज द
दिस थिंग फॉर वेल रॉटेड, आपको पहचान कैसे होगी कि बहुत अच्छी है कि नहीं है? तो सबसे पहले जब आप खाद लेने जाते हैं, एक तो किसी भी रिलायबल सोर्स से अगर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो अच्छी ही चीज देंगे। लेकिन आप किसी नर्सरी से लेने जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, किसी को ट्राई कर रहे हैं, सो गो एंड पिक अप सम दिस थिंग मैन्योर इन योर हैंड एंड स्मेल, खुशबू उसकी सूंघिए। जो अच्छी सड़ी हुई होगी उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, बल्कि मिट्टी की सूंधी सूंधी सी महक होगी उसमें, तो फाउल स्मेल नहीं करेगा वो। तो दिस इज वन क्वालिटी। द अदर इज द कलर ऑफ द manure will be very very dark brown towards blackish. It will not be biscuity brown, camel brown nahi hoega wo, dark brown towards blackish. And then again, if you put that a handful of this cow dung manure, which the supplier is saying is very well rotted, into a pot and or on the ground itself, you will not get a pot in the nursery while you are buying. So when you take it, put it on the pot, ground, and pour some water in it, then what happens? The water that comes out, seeps out from the heap of this thing manure, should be of dark brown color, not pale brown like tea. It should be dark brown. So these are a few factors which will determine that your manure is very well rotted. अगर well rotted नहीं है तो इलाजी क्या होगा जी? तब ये होगा कि the rest of the procedure will take place in the pot itself with the soil, and in the process the roots of the plant will get rot. ठीक है, जो चीज एक एप्पल आप अच्छे एप्पल्स के संग में रख देते हैं तो बाकी एप्पल भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। सेम ये, अगर आपकी काउ डंग मैन्योर बहुत अच्छी वेल रॉटेड नहीं है तो आपके जो प्रोसेस है वो शेष पूरा तो करेगा ही अपना सिस्टम, तो वो इन द प्रोसेस आपकी जो जड़ें हैं वो भी खराब हो जाएंगी। ये जो हम लोग कोल सिंडर यूज कर रहे हैं, राखी या खंगर यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी पोरोसिटी प्रोवाइड करता है और बहुत पानी को सोख लेता है। जब जरूरत होती है तो उसको वो रिलीज करता है, एब्सॉर्ब करता है, एंड व्हेन द प्लांट नीड्स वाटर देन इट रिलीजेस द वाटर। इट आल्सो प्रिवेंट्स अल्कलाइन फ्रॉम डेवलपिंग। ये इसके मेन वो हैं। और जो नीम केक है, इट्स अ गुड पेस्टिसाइड, वेरी माइल्ड पेस्टिसाइड आल्सो, और थोड़ा ये नरिशमेंट भी आपके प्लांट को प्रोवाइड करता है। और ये जो हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, दीज आर ट्रेस एलिमेंट्स एक्चुअली, बहुत छोटी क्वांटिटी में इसकी जरूरत। राखी, आई टोल्ड यू डियर सिमी दैट इट्स अ इंडस्ट्रियल वेस्ट व्हिच कम्स फ्रॉम द फर्नेसेस। ये राखी नहीं जो प्रेस वाला देता है, कच्चे कोयले वाला या हवन की उसमें से निकलती है, not that ash that gives potash, है ना। ये जो राखी होती है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ये आपको ये जखीरा में पहले मिल जाती थी, वहां पे इंडस्ट्रीज काफी हैं, सो वी यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम देयर, बट नाउ व्हाट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जब लोगों को पता चलता है कि इनको तो पहले तो ऐसे कट्टे के कट्टे भर के दे देते थे, क्योंकि उनके लिए वो वेस्ट मटेरियल है, दे डोंट यूज इट एनीमोर, दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट रादर, सो दे यूज्ड टू गिव इट लाइक दैट ओनली। बट नाउ एज दे कम टू नो कि ये तो काम की चीज है, इससे तो पैसे बनाए जा सकते हैं, तो वो थोड़े अब नखरे भी दिखाने लग गए। एंड in fact the distance also is too much for us, so we don't go. Easily available जो मटेरियल होता है प्रोक्योर करने के लिए, वही हम लोगों को लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग का इंटरेस्ट बना रहे। If it is difficult to procure some material especially for something, you will say कि यार छोड़ो, एक बार ले आओगे, कितनी बार ले आओगे आप? Not possible, not practical also. इला जी, मैं रिक्वेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन जो है एंड ऑफ द सेशन ले लें, बिकॉज फिर अभी आप वहां से चले गए तो अब वापस राखी पे आके फिर लिंक आपको 2 मिनट लगेगी टू गेट बैक टू दैट। सॉरी फॉर दिस, बट राइट। सो ये आपका जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आ रहे थे,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत छोटी क्वांटिटी में हम लोग को चाहिए होता है, जैसे हम लोग अपने थोड़े से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं उस तरीके से, एंड दे कंसिस्ट ऑफ बोरोन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक एंड अदर कंपाउंड्स आल्सो। तो इसको आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बताई थी 150 ग्राम्स, ये जो सब था। तो इसमें जो हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है दैट वाज 150 ग्राम्स। अच्छा, जो फंजीसाइड होगा वो मैंने बता दिया, वो आपको रॉट करने से बचाएगा। अब इस को आप अच्छी तरह सबको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद स्प्रे वाटर ऑन इट, पानी की छींटे दे दीजिए, एंड कवर इट विद अ शीट, प्लास्टिक शीट। उस पूरी हीप को आप एक प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए। उसमें फिर हीट जनरेट होएगी और वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। डोंट कीप इट इन द सन, keep it in shade. Whenever you are using something for the plant, don't ever expose those materials to the sun, except when you want to solarize certain things. जैसे कि सैंड है, या आपकी बदरपुर है, या आपकी पॉट है, पॉट में सब खाली होंगे हमारे गमले, उनकी सॉइल है, उनको आपको करना है तो उनको अगर आपको सोलराइज करना है तो आप धूप में डालिए। नहीं तो किसी भी मेन्योर को, स्पेशली ऑर्गेनिक किसी भी चीज को आप धूप में नहीं रखेंगे। उससे क्या होता है, उसके जो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने गमले का जो भी सामान है, खेती बाड़ी का जो भी सामान है, उसको आप छांव में रखिए। अगर आपके पास कट्टे भी हैं, इसके आप इकट्ठे मंगा लेते हैं, तो उनको भी प्लीज धूप में मत डालिए। अब उसको ढक दीजिए प्लास्टिक से, और वही जैसे मैंने बोला 2-3 हफ्ते के लिए, और उसको मैच्योर होने दीजिए। लेट द सॉइल मैच्योर, एंड देन आफ्टर मैच्योरेशन उसको प्लास्टिक हटा लीजिए 2-3 हफ्ते के बाद, सूखने दीजिए, एंड देन द सॉइल इज रेडी फॉर योर प्लांट्स टू यूज इट। आते हैं पानी पे और फर्टिलाइजर पे। अगेन, as I said, all the aspects which we are discussing are related to each other. आप एक को छोड़कर एक को नहीं ले सकते हैं। तो आते हैं हम पानी और न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज कैसे करना है इसको। So as I told you, adeniums go into dormancy after winter, during winter, not after winter, sorry, during winters, जो कि अगर नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन बिलो 10 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, एंड डे का जो मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है हमारा कितना जाड़ों में, 13, 15, 18 ऐसे इन पे होवर करता है। तो अगर वो कंडीशन आ जाती है तब आपका पौधा जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन अगर आप ये वाली सॉइल यूज कर रहे हैं जो हमने अभी बनाई है, but if you're using this soil which we have described, उसमें क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस समय पानी कम देंगे, क्योंकि जो चीज डॉर्मेंसी में चली गई ना वो खाना चाहिए उसको, ना पानी चाहिए। ऑकेजनली जब बारिशों में कई बार जाड़ों में कई बार बारिशें भी हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी पानी नहीं दीजिए। हफ्ते 10 दिन में एक बार, इफ द सॉइल इज सच which we have discussed above, तो तब आप 10 दिन में एक बार पानी दे दीजिए। नहीं तो आप 15-15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो आपके पौधे को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और ऐसी सॉइल होने से क्या होगा, जैसे अभी बारिशें हो रही हैं, जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि अंदर रखने होते हैं पौधे, ऐसा कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। मेरे पौधे हैं 12 महीने बाहर धूप में ही रहते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सब वो बाहर ही झेलते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस, स्पेशली इन द अपार्टमेंट्स वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस। हमारे और भी गमले होते हैं, हमको अपने घरों में भी रहना होता है, तो हम अपने गमलों को अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगी करना भी नहीं चाहिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उनको रखना भी नहीं चाहिए। उसके लिए आप सॉइल ही ऐसी प्रोवाइड करिए कि आपको ये परेशानी उठानी ना पड़े। क्योंकि अभी ये छोटे छोटे गमले हैं, मान लीजिए इनको तो आप उठाएंगे एक संग 2 भी उठा के रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं अभी आपको बड़ा गमला जब दिखाऊंगी तब आप उनको कितना उठाएंगे, इतनी भारी गमले। यू नीड मैन पावर, यू नीड स्पेस, एवरीथिंग।
और जब आप पानी डालेंगे तो वहां पे मेसी होएगा. थिंक ऑफ दीज इन दीज टर्म्स ऑल्सो. तो उसके लिए आप सॉइल अपना ठीक से रखिए. और मॉनसून में क्या होगा, यू कैन कीप द प्लांट्स ऑलवेज आउटडोर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम if the soil mix is right and you have a sunny and airy spot. That is very important. क्लस्टर में मत रखिए अपने पौधों को, हमेशा ऐसे रखिए कि हवा उसके चारों तरफ जा सके. कोने में घुसा घुसा के मत रखिए. जब हम अंदर रखेंगे तो हमको यही करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ स्पेस. तो हमको पौधों को मिला मिला के रखना पड़ेगा, क्लस्टर में रखना पड़ेगा. लेकिन अगर हम बाहर रखेंगे तो उनमें हवा और धूप अगर कभी निकलती है अच्छी सी, तो वो उनमें पूरी पड़ेगी, तो आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा. और जैसा कि मैंने पहले बताया, वॉच योर प्लांट ग्रोइंग विद एवरी वाटरिंग. जब आप पानी देंगे आपके पौधे को खुराक मिलेगी, ऊपर जाएगी, और आपका पौधा खूब अच्छा फ्लरिश करता रहेगा. लेकिन क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी सी जल्दी भी होती है ना, कि अगर आपने ऐसी खाद वाद सब मिला के दे दी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है. अमूमन ये जो फरवरी से लेके और सितंबर अक्टूबर तक के दिन होते हैं कि आपको इसमें और न्यूट्रिशन देनी पड़े. पर हम लोग पूछते हैं भाई फूल नहीं आ रहे, क्या करें क्या करें. तो इसके लिए अगर आप चाहें तो जब इसका सीजन शुरू होता है, एंड दैट इज ऑनसेट ऑफ समर्स, फरवरी में, जब फरवरी में ये ग्रो करने लगता है और इसकी शूट्स दिखाई देने लगती हैं, तब हम इसको फिर से थोड़ी सी खुराक, अगर आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन डू ऑल द ऑपरेशंस ऑन योर दिस थिंग अडेनियम प्लांट. आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप प्रून कर सकते हैं, आप इसकी क्या नाम है, मैंने अभी बोला था, रिपोर्ट, प्रून एंड one thing what I said was इसमें ऐड कर सकते हैं फर्टिलाइजर, और अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो. क्योंकि अब डॉर्मेंसी में से निकला है, बच्चा सो के उठता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, भाई 2-3 घंटे सोया है, भूखा होगा. सेम विद द प्लांट्स. तो उसको फिर आप नरिश करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिक्विड मेन्योर दे सकते हैं, नीम खली बोन मील की, जो आई डोंट नो बहुतों को पता होगी या नहीं. थोड़ा सा लिक्विड मेन्योर कैसे बनाते हैं, हमने आधा किलो, थोड़ी क्वांटिटी की बता रही हूँ मैं, आधा किलो, 1 किलो का पैकेट नीम खली का खोलिए, 1 पैकेट नीम बोन मील का खोलिए, और उसको 10-15 लीटर पानी में भिगो दीजिए. तकरीबन इस मौसम में अगर आप बनाते हैं उसको तो हफ्ते भर के लिए. और कीप स्टरिंग morning and evening, both ways, clockwise and anti-clockwise, morning and evening. And then after 7 days it will be ready to use. अब उसको 1 that and 10 of water, 1:10 का रेशियो लेके. एंड डोंट एक मैंने फिक्स्ड कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता है. जो गार्डनिंग होती है ना, ये बहुत ऐसी चीज है कि आप खुला छूट है इसमें, जो मर्जी करो आप. तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स से आप मत गार्डनिंग करिए. फिर आप बहुत बंदिश में जब कोई काम करते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है. तो ये जो मैंने 1:10 का रेशियो बताया है, उसको आप ये देखिए, उसका कलर देखिए आप, फिर कि आप ऐसे उसको करते हैं तो दैट शुड बी ऑफ वेरी लाइट टी कलर. यू कैन स्टार्ट गिविंग दैट लिक्विड मैन्योर टू योर प्लांट. तो ये जब आप उसमें आप डालेंगे तो आपका प्लांट फ्लरिश करने लगेगा. And to top it all, you also use the NPK 19-19-19 to it. वो भी 1 tablespoon to a liter of water. Water soluble होती है, उसको आप आसानी से डाल सकते हैं, और वो हर महीने आप एक बार ग्रोथ पीरियड में उसको यूज कर सकते हैं. और इसका ग्रोथ पीरियड मैंने आपको बता दिया, फरवरी ऑनवर्ड्स. अब आते हैं डॉर्मेंसी में से जब आपका ये बाहर निकलता है, तो सॉरी, जब डॉर्मेंसी में होता है तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें हम पानी नहीं डालते हैं. अब मार्च में जब इसमें से नए फुटाव आने लगते हैं, स्टार्ट वाटरिंग ग्रेजुअली, और हफ्ते में 1-2 दिन, फिर पहले हफ्ते में 1 दिन, फिर 2 दिन, और फिर अगर आपकी सॉइल अच्छी है, लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ द सन ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट वाटरिंग योर प्लांट्स डेली. अब आते हैं लाइट के ऊपर. अगेन आई विल से another very important factor. It's a
this thing desert plant, so obviously it prefers full sun, and you should keep your plant all the time, चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, आपको अपने प्लांट को धूप में ही रखना है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसकी जब आपने प्रूनिंग की है, मान लीजिए अब सन बहुत ज्यादा, आपने इसकी प्रूनिंग की है और सन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप थोड़ा सा उसको शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है उसका जलने का थोड़ा सा खतरा रहता है। और अगर बहुत स्कॉर्चिंग सन है तो क्या होता है, जिस तरफ वो सन पड़ रहा है उधर की तरफ की जो टहनियां होती हैं या कॉडेक्स होता है, इट टेंड्स टू बर्न ऑल्सो, तो उस पे बर्न के निशान आ जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप रोटेटिंग आवर प्लांट से अबाउट 10 डिग्रीज एवरी वीक। उससे क्या होता है कि आपका प्लांट एक तरफ को नहीं झुकता है। जब आप क्लस्टर में प्लांट रखते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच टू द प्लांट्स एंड टू मूव देम। तो इसलिए खुली जगह में जहां उनको एयर मिल रही है, सराउंडिंग उसकी अच्छी है, एयर फ्लो कर रहा है अच्छी तरह, तो आपको उसके गमले को घुमाने में भी बहुत सुविधा रहती है। तो हर हफ्ते अपना गमला जो है वो कम से कम फरवरी ऑनवर्ड्स जो है 10 डिग्री जरूर घुमाइए, नहीं तो क्या होगा कि जिधर आपकी धूप होएगी उस तरफ आपका प्लांट झुकता चला जाएगा और पीछे की टहनियां जो है वो लंबी हो जाएंगी, क्योंकि जितना एक्सपोजर इस प्लांट को धूप का मिलेगा उतना ही इसकी ग्रोथ कॉम्पैक्ट होगी, पत्तियां छोटी हो जाएंगी और ग्रोथ जो है वो कॉम्पैक्ट रहेगी। अगर आपके पौधे को पूरी धूप नहीं मिल रही है तो उसकी स्टेम्स जो है वो लंबी लंबी लैंकी हो जाएंगी और पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तब आप समझ लीजिए आपके पौधे कह रहा है कि मुझे भैया बहना जी धूप में रख दो। बहुत बार देखा है कि टहनियां बहुत लंबी हो गई हैं और पत्ते भी बड़े बड़े हो गए हैं और ज्यादा भी ब्रांचेस नहीं होती हैं फिर, क्योंकि वो धूप उसको मिल नहीं रही है। 3-4 घंटे की आप बोलोगे धूप मिलती है अर्ली मॉर्निंग, ईस्ट में मेरे रखे हुए हैं, तो नहीं चलेगा जब तक कि उसको दिन वाली धूप कम से कम 6-8 घंटे की नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप उसको क्या नाम है प्रून जब करेंगे तो आप उसको फरवरी में प्रून करिए, रिपोर्टिंग कर दीजिए उस समय। और इसकी जो ग्रोथ होती है जनरली 3 से 4 साल तक होती है, प्लांट की ग्रोथ 3 से 4 साल तक ये अच्छी तरह डेवलप कर लेता है। तो उसी दौरान हमको क्या करना है कि ग्रोथ के दौरान ही हमें इसको शेप देनी शुरू कर देनी चाहिए। प्लांट को शेप कैसे देना होता है कि हम लोग चाहते हैं कि इसका कॉडेक्स अच्छा बन जाए और इसकी ब्रांचेस इसमें खूब सारे निकले, क्योंकि जब ब्रांचेस जितनी होती हैं हमें पता है उतने ही उसमें फूल आते हैं, फूल नई ब्रांचेस में आते हैं। तो क्या होता है हमें इसकी फिर पिंचिंग करना जरूरी होता है। फॉर न्यू ब्रांचेस वी हैव टू, दैट इज नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द मैनेजिंग द शेप एंड ग्रोथ। जब आपका प्लांट ग्रोथ में है तो उसकी शेप आपको कैसे मेंटेन करनी है। आप फरवरी में जब इसकी स्टार्ट होने लगेगी ग्रोथ, तो आप इसकी ब्रांचेस की पिंचिंग करनी शुरू करेंगे, तो वहां से नए फुटाव आने शुरू होंगे। और इसका कॉडेक्स भी आपने रिपोर्टिंग की है, तो इसका कॉडेक्स भी हम थोड़ा सा 4 साल बाद जब हम रिपोर्ट करेंगे इसको थोड़ा सा उठा देंगे। दैट इज हाउ यू स्टार्ट गेटिंग अ बिग कॉडेक्स। लेकिन जो कॉडेक्स हम उठाएंगे यू विल हैव टू सेव इट फ्रॉम द सन, because before lifting the codex about 1/2 inch or 1 inch above the soil, it will be prone to sunburn. क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो कॉडेक्स था ये सॉइल के अंदर था, इसको धूप नहीं मिली थी अभी तक, और अब आपने उसको उठा दिया है ऊपर, और ऊपर उठा दिया है उसको एकदम से धूप मिलने लग गई है, तो उससे उसको फिर वो वहां से वो बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए when you lift your codex after this thing growth period इसका 3 से 4 साल जैसे मैंने बताया, तब आप उसको थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू करिए और थोड़ा सा उसको सन से प्रोटेक्ट करना शुरू करिए। जब वो हार्डी हो जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बताया ही हमने 12 महीने ही वो बेचारा बाहर ही रहता है।
तो इस तरह से हो जाता है। और नहीं तो ये जो सनबर्न वाला जो है ये कई बार परमानेंट स्कार जैसा भी बन जाता है। और आपको जितनी भी कटिंग करनी है, शेप देनी है, जब आपका पौधा इस स्टेज पे होता है तभी आप देखिए, मैंने इसकी यहाँ पे पिंचिंग कर रखी है, ये देखिए, ये you will not see the tip, new leaves are not emerging from here। तो जितनी भी आप इसकी पिंचिंग करेंगे उतनी नई ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे इस वाले में है, ये तो जो सीड ग्रोन होएगा ना, उसमें मैं दिखाना चाहूंगी why this one is having a caudex, because it is from the seeds। ये सीड ग्रोन है, सीड ग्रोन होएगा उसमें शुरू से ही कॉडेक्स बनना शुरू हो जाएगा। whereas this one is from cutting, this one is from cutting, और इसमें आप देख रहे हो इसमें कॉडेक्स नहीं है, ठीक है। बट इसकी भी मैं ये पिंचिंग की थी और अब देखिए ये इतना बड़ा है और इसमें ये ब्लर क्यों दिख रहा है दीपा? आई डोंट नो व्हाई, आपको क्लियर दिख रहा है? एनीवेज, तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी 2 ब्रांचेस हो गई। अब यहाँ पे भी मैंने इसकी पिंचिंग की है, एक की, और एक में थोड़ी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो शुरू से ही हम इसकी पिंचिंग करेंगे तो we'll get the roots, branches, and the beauty of the branches is when they emerge from the codex। ये नहीं कि ऊपर जाके उसके फुटाव आए हैं ब्रांचेस के, नहीं, जब ब्रांच आपके कॉडेक्स में से ही निकल के आ रही है तब आपका जो शेप निकल के आती है प्लांट की, वी वांट दैट, गॉट इट। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को शेप दे सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, द रूट्स नीड टू डेवलप अ गुड फैट शेप, एज आई हैव टोल्ड यू। फॉर दिस डू नॉट चूज अ वेरी डीप पॉट। अगर आपने वही बात करी कि डीप पॉट लिया है तो आपकी टैप रूट नीचे चली जाएगी और आपको जो है कॉडेक्स बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा, एंड इट विल गेट अ कैरेट शेप। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। एंड if you started the plant in a bed, as I told you, again the same problem, and you will find it very, very difficult again to put it in a shallow pot for a showy purpose. So in fact 3 years avoid the urge to expose the caudex। आप उस बच्चे को अभी बढ़ने दीजिए, अभी उसका कॉडेक्स एक्सपोज न करें, क्योंकि अभी वो ग्रोथ पीरियड में है। एक बार प्लांट को स्टैब्लिश होने दीजिए, जब उस प्लांट स्टैब्लिश होता है देन स्टार्ट प्लेइंग विद इट। अभी वो स्टैब्लिश हुआ नहीं, आपने इधर उधर उसको करना शुरू कर दिया, वो बेचारा परेशान होकर खत्म भी हो जा सकता है, ठीक है। तो डोंट डिस्टर्ब द प्लांट फॉर इनिशियल स्टेजेस। दिस डेवलप्स अ लार्जर कॉडेक्स, देन विद ईच रिपोर्टिंग एक्सपोज द कॉडेक्स लिटिल बिट। जैसे लिटिल बिट माने आधा इंच बहुत है, आधा से पौना इंच, नॉट मोर देन दैट, थोड़ा सा उसको लिफ्ट करिए। एंड देन the plant needs to have a lot of branches for a show plant। जैसे एग्जीबिशंस लगती हैं तो आपका प्लांट ना भी लगे यार, उसमें क्या है, हमारे को घर में भी अपना प्लांट जो है वो शो ही होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय पिंचिंग द न्यू ग्रोथ। एंड व्हेन डू यू पिंच? आप पहले साल में जो ग्रोथ पीरियड है, जैसे मैंने बताया 3-4 साल का, उसमें आप साल में 3 बार भी कर सकते हैं पिंचिंग। डोंट हेजिटेट, डोंट गो फॉर द फ्लावरिंग। फूल नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक पौधा ऐसा है जो आपके संग सालों साल रहेगा। मेरे कम से कम 30-35 साल पुराने तो हैं ही, तो सालों साल रहेगी जो चीज, उसके लिए आप 3-4 साल तो दे सकते हैं ना उसको डेवलप करने के लिए, उसकी ब्यूटी शो बढ़ाने के लिए। तो जस्ट कर्ब योर अर्ज टू सी द फ्लावर्स इन द अर्ली स्टेजेस, रादर कॉन्सेंट्रेट to get a better shape and a beauty, जिसको बोला specimen adenium, जिससे लोग आके कहें कि आपके पेड़ कैसे इतने अच्छे होते हैं, हमारे क्यों नहीं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक फीलिंग आती है अचीवमेंट की कि हाय मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी ऐसा हो गया। Because over the years you are training them like that, you are taking care of them like that, कि आपको लगता है ये तो रूटीन है यार, इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो ही जाता है ऐसा। लेकिन इनिशियली आपने उसकी बहुत केयर की थी जब वो बच्चा था, जब बच्चे की आपने केयर की तो वो आपको अब अपना रिजल्ट दिखा रहा है। और उसके बाद आप जब ये ईयर्स में 2-3 बार आप पिंच कर सकते हैं, तो अब दूसरी बार क्या होता है, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो भी आप साल में 1 बार पिंचिंग जरूर करिए।
आपके ये जैसे इसमें 2-3 फ्लश आते हैं फ्लावर्स के, एक फ्लश आपका मिस होएगा, लेकिन जो दूसरा फ्लश आएगा, बिकॉज ऑफ द पिंचिंग यू विल गेट मोर ब्रांचेस, तो यू विल गेट मोर फ्लावर्स ऑल्सो। तो ज्यादा पाने के लिए थोड़ा तो खोना पड़ेगा, एक फ्लश छोड़ दीजिए, उसमें क्या बात है। तो इस तरह से आप अपने एडेनियम की शेप मेंटेन करके रख सकते हैं। एंड उसके बाद में और इसमें हमें क्या करना है, जो हम कट करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, हम इसकी क्यों करते हैं ट्रेन इसको, क्योंकि जो स्कार होता है ना, काटते हैं हम लोग भी, कोई हमारा कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाती है, बचपन की जो चोटें होती हैं, तो वो हमारी जब हम बड़े होते हैं तब तक वो खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, हम बड़े होते हैं हमारी स्किन जो है उसको कवर कर लेती है। इसी तरह से पौधों में होता है कि जो आपने उसकी प्रूनिंग की थी, बचपन में उसकी प्रूनिंग की थी, वो ग्रो करेगा प्लांट आपका, तो वो स्कार आपको दिखाई नहीं देगा फिर उसके बाद, क्योंकि वो बड़ा होएगा, टहनियां मोटी मोटी हो जाएंगी, उनके अंदर वो छिप जाएगा। द ब्रांचेस, द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस विल ओवरटेक ओवर इट। बट अगर आपने बड़े होके करा है, जो हमको वैसे करना भी पड़ता है, तो उसका वो कट आपको नजर आता रहेगा। और इसमें जाड़ों में इसकी केयर कैसे करनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब यू हैव टू सेव द टिप ऑफ द प्लांट फ्रॉम द फ्रॉस्ट, जो ओस गिरती है उससे आपको इसकी टिप को बहुत बहुत बचाना है, क्योंकि अगर वो वहां टिक जाती है तो उससे वो रॉट होने के चांसेस 101% हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब ओस गिरने का टाइम आता है तो आप उसको प्लास्टिक शीट से रात में कवर भी कर सकते हैं, सवेरे आप डोंट फॉरगेट टू रिमूव दैट प्लास्टिक शीट, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं हटाया तो उसके अंदर वो एक वो बन जाएगा, ग्रीन हाउस बन जाएगा, खूब गर्मी हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसे हटा देना बहुत जरूरी है। और इसमें अगर हम इंसेक्ट्स और पेस्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट इसके जो लगते हैं, मिली बग्स लग जाते हैं जाड़ों में इसमें, अर्ली स्प्रिंग, जब हमेशा आपको पता है जब चेंज ऑफ वेदर होता है, वेदर वी ह्यूमंस और प्लांट्स, दे गेट इन्फेक्टेड, कोई ना कोई डिजीज जरूर नजर आ जाती है, आ ही जाती है। तो इसी तरह से पौधों में जब वेदर चेंज होता है तो आती है, तो एडेनियम्स में विंटर से जब ये डॉर्मेंसी में निकलते हैं तो फिर इसके मिली बग्स इसमें आ जाते हैं। एंड यू नो मिली बग्स दैट स्मॉल येलो 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 ग्रीन, कई बार व्हाइटिश, इस तरह से वो होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो टिप्स पे लगे होते हैं। बी वेरी वेरी वॉचफुल, ये आपके माली को दिखाई नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको दिखाई देंगे। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गो इन द योर गार्डन, प्लीज कीप एन आई फॉर दीज insects on all, check every tip of your plant। ये और दूसरा जो आता है इसमें एक आते हैं ये मिलीबग्स और दूसरे आते हैं एफिड्स, ये भी ग्रोइंग पॉइंट्स पर आते हैं और या पत्तियों के पीछे आते हैं। तो कहीं भी आपको पत्ती नेचुरल से जरा सी भी कुछ लगेगा कि श्रिंक हो रही है या धब्बे पड़ रहे हैं उसके ऊपर या बर्न हो रही है, व्हाटएवर, माने नॉर्मल से अगर कुछ भी उसमें चेंज आपको नजर आ रहा है, प्लीज डू अ थॉरो चेक और आसपास के पत्तियों पर भी चेक करिए कि पलट के जरूर देखिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पीछे की तरफ छिप के बैठे रहते हैं, आपको नजर नहीं आएंगे जब तक कि आपकी पत्तियां और या पौधा बिल्कुल उनके कंट्रोल में ना हो जाए। तब आप कहेंगे अरे मेरा तो पौधा मरने लग गया है। तो इसलिए बी वेरी वेरी वॉचफुल फॉर दीज टाइनी, वो जो क्या बोलेंगे, एफिड्स एंड मिलीबग्स। इनके लिए आप प्रिवेंटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि जैसे भी सीजन शुरू होता है स्प्रिंग का, तो आप उस पे नीम ऑयल और सोप का स्प्रे कर सकते हैं, जो भी आपको बहुत बताए गए होंगे। महेश मिश्रा जी का क्लास दीपा जी बहुत बार कराती रहती हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर। पर कई बार क्या होता है जब आपका इन्फेस्टेशन बहुत बढ़ जाता है, आप गए वो जैसे बाहर आप चले गए और आपका प्लांट्स निग्लेक्ट हो गए, तो माली ने नहीं ध्यान दिया, देन यू नो व्हाट हैपेंस इज ये ऑर्गेनिक काम नहीं करते हैं। हम लोग भी बहुत बिलीव करते हैं होम्योपैथी में, बट अल्टीमेटली जब बहुत इन्फेक्शन सिवियर हो जाता है तब हमको एंटीबायोटिक ही लेनी पड़ती है।
ठीक है ना? तो इस तरह से भी डोंट हेजिटेट इन यूजिंग दिस, बिकॉज दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल बी इफ यू आर यूजिंग अ प्रिवेंटिव मेजर, नथिंग विल हैपन टू योर प्लांट्स. आपको यूज करना ही नहीं पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिकल, आपको डालना ही नहीं पड़ेगा. तो बी वेरी वॉचफुल ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द सीजन. तो आप अगर इसका नाम लिखना चाहें किसी भी सिस्टेमिक उसका, तो आप लिख सकते हैं. मेलेथियन तो बहुत कॉमन है, रोजर बहुत कॉमन है. तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 2 ml के रेशियो से. और फंजीसाइड जरूर इसमें डालें आप, इसके सॉइल में भी डालें, ऑनसेट ऑफ विंटर्स एंड कमिंग आउट ऑफ डोरमेंसी इन February and March. और कब दिक्कत होती है फंगस लगने की, रॉट होने की? इस समय. So onset of monsoon, that is June, July, and when they are coming out of rains, that is end of this thing, mid-September or beginning of October, then again give them a thorough wash of Bavastine and in the roots also, water them with Bavastine. अगर आप इतना थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अपने पौधों का, इसका एडेनियम्स का, तो आपके पौधे जो हैं, आप खुद भी खुश रहेंगे और आपको भी खुश रखेंगे. तो ये पूरा है. अब मैं आती हूँ बीज के ऊपर और आपको अपना प्लांट दिखाती हूँ. सॉइल सीड्स की कैसी होनी चाहिए, सीड कैसे लगाने चाहिए. दीपा, रिमेम्बर? दीपा, आर यू देयर? दीपा जी चली बीच बीच में है. दीपा जी, आपको याद है जब मैंने ये इसका क्लास लिया था अभी प्रोपगेशन का, देन आई शोड देम द एडेनियम सीड्स, राइट? तो वो क्या हुआ था कि वो पॉट और वो सीड्स यहीं रह गए थे टेबल के ऊपर ही. तो नेक्स्ट डे, द अदर डे, माली केम आफ्टर 1 day, देन आई सेड कि भैया इसकी बाल बाल निकाल दो और बीज कटोरी में रख दो. ये बीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने सो किए थे. फिर योर क्लास वाज ऑन द 15th परहैप्स, एंड आई पुट देम ऑन वेडनेसडे. ट्यूसडे मेरी बाहर जाना था, तो वेडनेसडे को मैंने डाले हैं. एंड टुडे इज सैटरडे. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टुडे इज द 4th day, है ना? एंड लुक एट द ग्रोथ ऑफ देम. ये देखिए, 4 दिन में ये इतने तो अपने सब्जी के बीज नहीं जल्दी निकलते. So I'm really happy, and I didn't keep them outside also. मैंने कहा नहीं, अभी दीपा जी का एक क्लास है, तो इस ट्रे को बाहर नहीं रखते हैं, तो ये अंदर ही रखते हैं. और ये देखिए, फिर वही बात आती है, लाइन में जरूर लगाइए. मैंने लाइन में लगाए हैं, है ना? और एक दो this is the secret. जी, your mixture. हाँ, This I'll is come the to that. secret, you know, एक तो mixture and the way you sow the seeds. Exactly. So ये जो बीज हैं, ये यहीं रह गए थे. अब हम इसको, आप लोग ने देख लिया है, बहुतों ने शायद ये क्लास अटेंड भी किया होगा प्रोपोगेशन के. तो वो इसमें मैंने, आई वांटेड टू शो देम आल्सो कि हाउ फास्ट द टाइम मैटर्स अ लॉट. अगर आप वो टाइम निकाल देते हैं ना, जैसे मैंने बताया ऑनसेट ऑफ विंटर्स, अगर आपने इसमें प्रिवेंटिव नहीं डाला, आपने इसको बेवस्टीन से इसको, या क्या नाम है बेवस्टीन के साफ, दूसरा वो है फंजीसाइड, अगर आपने साफ से इसको ट्रीट नहीं किया, तो फिर आप दोष किसको दोगे कि अगर आपका प्लांट रॉट हो जाता है? अगर आपने ऑनसेट ऑफ समर्स आपने इस पे स्प्रे नहीं किया पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का, तो फिर आप दोष किसको दोगे? तो टाइम का बहुत ध्यान रखिए कि किस समय आपको क्या करना है. गार्डनिंग में टाइम मैटर्स अ लॉट. टाइम इट राइट. आई ऑलवेज से टाइम इट राइट. नहीं तो फिर अगर वो समय निकल गया, फिर वो हाथ नहीं आता है. तो इसकी सॉइल मिक्स के लिए व्हाट आई टेक इज व्हाट इज कोकोपीट. Cocopeat I wash thoroughly and again solarize it during March, April, जब sun बहुत harsh होता है. I do all my solarizing operations. Soil है, cocopeat है, and collection of leaves है for leaf mold, क्योंकि उस समय पतझड़ होता है. All these things I do during February, March, April, क्योंकि उस समय धूप बहुत ज्यादा होती है, अच्छी तरह आपका सैंड है. तो ये सब चीजें आप उस समय अगर कर लेते हैं पूरे साल भर के लिए, क्योंकि कितनी हम लोग को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी जगह हैं, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है. इफ वी टॉक अबाउट अपार्टमेंट्स एंड टेरेस गार्डन्स, तो एक एक कट्टा भी आप 50-50 किलो का भर के रख लेंगे, मोर देन इनफ फॉर 2 years इवन.
और ये सब चीजें तो हम लोग को छोटे छोटे कंटेनर्स के लिए चाहिए होती है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो ये मेरे पास है कोकोपीट 3 हिस्सा, और इसमें आई मिक्स वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद, ईदर ऑफ द टू, दोनों नहीं एक। तो 3:1 के रेशियो में आई टेक दिस, because the seeds are very delicate things, and when they start throwing roots, you know, again they have to have a very light and porous airy soil, जिससे कि उसकी जड़ें आसानी से उसमें फैल सकें। एंड देन इसके जो सीड्स होते हैं चावल की तरह छोटे छोटे होते हैं, चावल के जैसे दाने होते हैं, जौ वैसे छोटे छोटे होते हैं। ट्राई टू सॉर्ट आउट फर्स्ट, ऑल द सीड्स आर नॉट गुड। कई बार वो हॉलो होते हैं बिल्कुल अंदर से, जिसको कहते हैं ना कि पानी में तैरते हैं टाइप्स, इनको वैसे में सोक करने की जरूरत नहीं होती है, पर जो बीज पानी के ऊपर तैर जाते हैं उस तरह से वो हॉलो होते हैं, शैलो होते हैं बिल्कुल, उसमें अंदर तत्व नहीं होता है, और जो थोड़े थिक आपको फील करने से लगेगा, दोज आर ऑल राइट। एंड उसको फिर आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं अपनी ट्रे में, लाइन बना के 1.5 इंच की दूरी पे हॉरिजॉन्टली रखते हैं, वर्टिकल नहीं रखेंगे, ऐसे चावल जैसे है लिटाल के ऐसे रखते हैं, और बस उसको रखिए, दबा दीजिए, और ऊपर से थोड़ा सा जो आपका मिक्सचर है सॉइल मिक्स ऑफ कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, उसको हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए। कीप इन माइंड योर सॉइल मिक्स शुड बी वेट, नॉट वेट, सॉरी, moist all the time while sowing seeds, while the seeds are in the process of germination. वो बहुत जरूरी है। और कभी भी ऐसे करके पानी मत दीजिए, ऑलवेज स्प्रे विद अ स्प्रेयर, जिससे कि आपके जो सीड्स हैं, क्योंकि वो बहुत कम सॉइल है उसके ऊपर, मटेरियल है, तो वो अगर आप उससे स्प्रे से नहीं करेंगे तो वो डिसलोकेट हो जाएंगे, डिसलॉज हो जाएंगे, तो आपके बीज छिड़ते रहेंगे तो वो उगेंगे नहीं फिर। तो इसलिए आप ये करिए। और अभी जैसे मैंने तो अंदर ही रखा हुआ है, अंदर भी काफी ह्यूमिडिटी है, बहुत जल्दी हो गए हैं। और इसके बीज हम लोग जो है, जब आप हार्वेस्ट करती हैं इसके बीज, उसके 10 दिन के अंदर ही कम से कम लगा लीजिए। जैसे हम लोग एनुअल्स के हैं साल साल भर रखते हैं, सब्जियों के हैं साल साल भर रखते हैं, लेकिन इसके बीज जब आप हार्वेस्ट करती हैं उसको आप 1 दिन के अंदर ही, हफ्ता 10 दिन में जरूर लगा लीजिए, तो आपके बीज का जो रेशियो है, जर्मिनेशन का रेट है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो बीज जब पुराने हो जाते हैं तो उतनी अच्छी उसकी रेट ऑफ जर्मिनेशन नहीं आ पाता है। तो एक तो ये है इसका सॉइल मिक्स जो कोकोपीट के संग है। दूसरा, यू कैन डू इट विद सैंड आल्सो इफ यू वांट टू, सैंड एंड सम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। क्योंकि देखिए सैंड में ना कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ये खाली एक मीडियम है। तो हम लोग जब वो उतना तो उसके बीज में रहता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो अपने को जर्मिनेट कर ले, जो लीफ सीड लीव्स हैं उनको थ्रो कर ले, बट आफ्टर दैट व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इट नीड्स सम न्यूट्रिशन। तो वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन टिल वी प्लांट, रिपोर्टेड, ट्रांसप्लांटेड, ट्रांसफर इट, तब तक उसको न्यूट्रिशन मिले, उसके लिए हम लोग उसमें थोड़ी सी खुराक उसको दे देते हैं। तो इसलिए आप कोकोपीट की जगह यू कैन यूज स्टरलाइज्ड सैंड, यू कैन यूज स्टरलाइज्ड बदरपुर, एंड ये आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत लोग इसमें फंगिसाइड भी डाल देते हैं, लेकिन आई डोंट पुट। एंड ऑलवेज जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं, don't ever transfer it in a big pot. Always the size of the sapling should the size of the pot should be according to the size of your sapling. अगर आप एक छोटी सी सैपलिंग 10 इंच के गमले में डाल देंगे, वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि उसको इतने खुराक की, इतनी किसी चीज की जरूरत ही। ओहो, बंदर आ गए, मेरे बैगन लगे हैं छत के ऊपर, माय गॉड। ये ना जो हमारा, I swear I can see monkey movement over here in front of my window. चलो आप नीचे ध्यान दो। मुझे ऊपर का भी तो ध्यान रखना है, बैगन खा जाएंगे मेरे, छिलके छिलके छोड़ जाते हैं, बैगन खा जाते हैं, अंदर का गूदा सारा जो है। मैम वो गन होती है ना बच्चों हाँ, वाली? वो है मेरे पास, हस्बैंड ने मंगा के दी है। उसको देखते ही भाग जाते हैं, बहुत होशियार है वैसे। देखते ही भाग जाते हैं। तो ये आप इसको कर लीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ आई विल शो यू माय बिग प्लांट। और ये ट्रांसफर कब करेंगे वो मैंने कई बार बता देते हैं, पर फिर भी फॉर न्यू मेंबर्स,
कि transplant after 4 weeks at least when you have a pair of say 3-4 leaves, 6 inches हो जाए या 4 weeks हो जाए, 3-4 inches हो जाए या 6 inches हो जाए, इससे पहले उसको ट्रांसप्लांट मत करिए अपने पौधे को, और जितना बड़ा पौधा है अकॉर्डिंगली उतने ही उसमें डालिए उसको। एंड और इसमें कुछ विशेष इतना है नहीं आपको करने के लिए। इसको मिस्ट करिए, मॉइस्ट रखिए अपनी सरफेस को, और धीरे धीरे अपने प्लांट को धूप में ले आइए। नाउ आई विल शो यू माय प्लांट एंड टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। मैम ये अपना कैमरा आप पोर्ट्रेट से हटा के नॉर्मल में करें, क्योंकि सारा ब्लर आ रहा है आपका। दीपा, हेलो दीपा, हेलो दीपा, दीपा आर यू देयर? हाँ, या सुनो, एक अनाउंसमेंट उसका कर दो क्रिसैंथेमम शो के लिए प्लीज। कर दिया कर दिया। अभी अच्छा, आपको ये दिख रहा है मेरा प्लांट? एक मिनट, दीपा कैन यू सी माय प्लांट? नो, I can see you only. अच्छा, so now you can see the plant. मैम There is a member who said सेटिंग में that you are on a portrait mode. हाँ अच्छा, एक मिनट, I'll call my son to help me. भैया, ये बाबू एक मिनट आना बेटा। भैया क्या कर रहे? मैम ये जो ब्लर आपने बैकग्राउंड को ब्लर किया हुआ है ना, उस वजह से हो रहा है। उस बैकग्राउंड ब्लरिंग को हटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। और कैसे हटाना है भैया? ये ब्लर हो रहा है, क्यों होगा? इसको हटाना है। अभी भी हो रहा है। अब इनको ये दिखाना है, ये है, इसको करना है। अब ठीक है, अब क्लियर है मैम, अब दिख रहा है? फर्स्ट क्लास। ये क्या हो गया इशिता? ये इसको ठीक कर दो। ठीक है, दिख रहा है। नहीं नहीं, ये आई एम कॉलिंग ये। ईला जी दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? दिखाई तो दे रहा है, और मेरे सुनाई को भी दे थोड़ी सी, मुझे भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है। यही तो प्रॉब्लम है। सुनाई भी ठीक दे रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। अच्छा, तो ये जो पेड़ है आप देख रहे हो इसको, अब इसका कॉर्डेक्स आप ये देखिए, ये ठीक है, और ये ब्रांचेस जो है ये यहीं से निकल रही हैं बिल्कुल। ये ब्रांचेस आर ऑल इमर्जिंग फ्रॉम द कॉर्डेक्स इटसेल्फ। ये ऊपर चली गई, ये यहाँ से, तो ये तभी निकलेंगी जब आप शुरू से अपने प्लांट को अच्छे से ट्रेन करेंगे। पहले से ही आप पिंचिंग करते रहेंगे, ये देखिए ये। और इस तरह से अगर स्टार बन जाते हैं, डोंट गेट स्केर्ड, दिस इज नथिंग। ये पेड़ जब पुराने हो जाते हैं तो अपने आप ये बन जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 2 दिन से अंदर रखा है तो पत्ते पीले पड़ गए, तो ये इस तरह से बन जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे आप देखिए, ये यहाँ पे प्रूनिंग की गई है, ये यहाँ से कटिंग इसकी भी की गई है, बट स्टिल दिस ब्रांच टेंड्स टू गो अप एंड अप एंड अप। ठीक है, बाकी जो ब्रांचेस हैं वो सब बिल्कुल शेप में है, ठीक है, बट दिस वन टेंड्स टू गो अप। इसी की बार बार प्रूनिंग की जा रही है, तो इसको इस बार भी जब हम प्रून करेंगे, अगेन आई विल ट्रिम इट फ्रॉम हियर, यहाँ से, और बल्कि इससे नीचे नहीं करूंगी, इसी ही से करूंगी, यहाँ से प्रून करके इसको। और आप 2 टाइम प्रून कर सकते हैं इस प्लांट को। एक तो आप सितंबर ऑनसेट ऑफ विंटर्स, उससे पहले कर सकते हैं, और या फिर आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ विंटर्स करने से फ्रेंड्स एक आपको फायदा ये मिल जाता है कि आपका प्लांट जैसे ही समर शुरू होता है फरवरी में, आपका प्लांट ग्रोथ में आ जाता है। ठीक है ना, तो एकदम से वो ग्रोथ में आता है और उसका
जो कवरिंग पीरियड होता है, रिकवरी पीरियड होता है, वो नहीं रहता है। वो इस समय जब आपके विंटर्स हार्श होने लगते हैं, दैट इज एंड ऑफ अक्टूबर और स्टार्ट ऑफ नवंबर, उस समय तक उसको वो रिकवर कर लेता है। बट स्टिल अगर आप नॉविस हैं, आप पहली बार इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू डू इट इन सितंबर अक्टूबर, डू इट इन फरवरी और मार्च। कभी भी आप मत करिएगा, क्योंकि अगर ये आपका रिकवर नहीं किया इसने अक्टूबर एंड तक यहाँ से, तो दिस विल टेंड टू गेट स्पॉइल्ड एंड इसमें रॉट सेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं, आपके पास एडेनियम्स हैं और आप करते रहे हैं, देन इट्स नो प्रॉब्लम, आप अभी कर लीजिए, तो आपका फ्लावरिंग उस समय बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, ये इसमें ये इसके सीड पॉड्स आ गए हैं। सीड पॉड्स के लिए आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि इसको हम लोग यहाँ से, ये देखिए, ये इसकी लाइन दिखनी शुरू हो गई। अब हम इसको टाई कर देंगे, जैसे करेला हम लोग बांधते हैं, और इधर से इधर ले जाके इसको बांध देंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे इसी में। डू इट विद अ कॉटन स्ट्रिंग, अच्छी रहती है, और लूज टाई करिएगा। उसके बाद में आप इसी में इसको मैच्योर होने दीजिए। बारिश में भीगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो रही है तो भीगेगी ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राउन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बीज अंदर तक भी गीले हो सकते हैं, उसको फिर आप यहाँ से काट के हार्वेस्ट कर लीजिए, ये यहाँ से, और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे मैंने लगाए हैं, आप बीजों को लगा लीजिए। एक बात और बहुत ध्यान रखने की है दोस्तों, इसमें अगर आपका ये मेरा तो उससे बना हुआ है, सीड से, अगर आपका वैसा वाला है ग्राफ्टेड है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ग्राफ्ट जहाँ पे है, नहीं ये ग्राफ्टेड ही है, सॉरी, ये जो ग्राफ्ट होता है, ये देखिए, एक ये लाइन आप देख रहे हैं डिस्टिंक्ट, बिल्कुल ये अलग है, और इसके नीचे ये जो लाइन है, इसके नीचे वाला पोर्शन अलग है। तो इस ग्राफ्ट के नीचे जो भी ये जो स्टेम्स निकली हैं, जैसे हम लोग गुलाब में काट देते हैं ना, बोलते हैं देसी गुलाब निकल आता है, तो वो आपका जो ओरिजिनल है, जो आपने ड्राफ्ट है, आपका जो इंग्लिश गुलाब है, वो खत्म होने लगता है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बिकॉज द न्यूट्रिशन वाज बीइंग सप्लाइड टू इट व्हेन द ग्राफ्ट वाज डन थ्रू दिस ओनली, द स्क्योन। तो आप इसको यहाँ से हटाते रहिए। बहुत लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे पौधे में एक बार में 2 रंग निकल रहे हैं, तो ये 2 रंगों के लालच में आप प्लीज मत रहिए। आप जो ड्राफ्ट पोर्शन के नीचे से जो फुटाव आ रहे हैं, उनको एकदम हटा दीजिए, जिस तरह की हम लोग गुलाब के पेड़ में हटा देते हैं। तो ऐसा करने से आपका पौधा जो है वो ठीक रहेगा। सो नाउ वी कम, जैसा कि दीपा जी ने कहा था, आपका एनुअल कैलेंडर, वी विल नॉट मिस दैट ऑल्सो। तो एनुअल, दीपा वी हैव टाइम फॉर इट, नो? Yes, we have. अच्छा, तो दोस्तों चलिए, आप एक कॉलम बनाइए, उसमें आप लिखें मंथ, लिखें जनवरी फरवरी, वर्टिकल कॉलम्स। फर्स्ट में मंथ, सेकंड में प्लांट स्टेटस, सेकंड में लिखेंगे हम प्लांट स्टेटस, एंड थर्ड थोड़ा बड़ा बनाइए, उसमें हम लिखेंगे स्टेटस के अकॉर्डिंगली लिखिए आप एक्शन। तो वी स्टार्ट फ्रॉम Jan onwards because our calendar starts from January. तो जनवरी में हमारा सीजन क्या होता है? मंथ एंड सीजन इज विंटर, और थोड़ी थोड़ी बारिशें भी होती हैं। तो हमारे प्लांट का स्टेटस उस समय क्या होता है? यार प्रैक्टिकल क्लास होता है तो बड़ा मजा आता है जब बच्चे जवाब देते हैं, यहाँ पे कोई जवाब सुनने को ही नहीं मिलता है। प्लांट का स्टेटस है डोरमेंट, और टेम्परेचर रहता है 4 से 8 डिग्री रात का, और दिन का रहता है 10 से 18 डिग्री के बीच में। आई होप एवरीवन इज मेकिंग दैट कैलेंडर। और इस समय हमको एक्शन क्या लेना होता है? टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट फ्रॉम ड्यू, ठीक है, प्लेस इन सनी लोकेशन, अवॉइड रिपोर्टिंग, बिल्कुल भी नहीं करनी है, नो वाटरिंग, पानी भी नहीं डालना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा आपकी पोरस सॉइल है, यू कैन पुट इन once in 10 days। आते हैं नेक्स्ट मंथ इज February, एंड दैट इज ऑल्सो विंटर्स।
and the status of the plant is always, again, not always, sorry, it is still in dormancy, dormant है. तो treatment भी क्या होगा, जब status भी same है, तो obviously action will be also the same. So same as above. The action will be same as above. Now we come to March and there's spring in the air. Spring. और हमको status क्या होता है? We see the first growth in our plant. Status is first growth. अब क्या करता है? हमको धीरे छोटे छोटे वो येलो वाले इंसेक्ट नजर आने लगते हैं, मिलीबग्स, एंड दूसरा क्या बताया था मैंने? एपिड्स. वो नजर आते हैं तो आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, प्रिवेंटिव, उसके ऊपर, इफेक्टेड एरियाज जो भी हैं उनके ऊपर. अपनी पानी की इनटेक जो पौधे को देनी है, अब आप 10 दिन में देते थे, अब once a week आप कर दीजिए. और उसके अलावा आप क्योंकि डॉर्मेंसी में से निकल रहा है, तो as I said, start giving some liquid manure to it and add some micronutrients again to it. क्योंकि अभी डॉर्मेंसी में से निकला है, we have to give some nourishment उसको ना. आते हैं अप्रैल में हमारा समर शुरू हो जाता है और प्लांट अपने ग्रोथ में आ जाता है, फ्लरिश करने लगता है, अगर आपने उसको मार्च में अच्छी तरह सब खुराक वगैरह दी है तो इस समय आप वाटरिंग जरूर इंक्रीज कर दीजिए, ऑल्टरनेट बेस पे कर दीजिए, हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर सॉइल टाइप. If the soil is drying out, you can always water it daily also. ठीक है, आप उसको डेली पानी करिए. और इस समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप प्रूनिंग कर सकते हैं. You can do all the operations discussed above now on your beautiful adenium. And as I told you that if you don't mind losing a flowering season in the interest of a bigger cortex, more branching and giving shape to your plant, then उसकी जो आप वो है, ये सब operations जो है, pruning वगैरह और repotting, lifting of the cortex, ये सब आप इस समय कर सकते हैं. आते हैं मई में भी समर होता है. अच्छा, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में, हमारी दिल्ली की बात करते हैं अगर हम, और टेम्परेचर काफी राइज कर जाता है, 38 to 45, 46 डिग्रीज तक हो जाता है दिन का, और रात का भी 30 से 35, 36 डिग्री तक रहता है. तो हम लोग वही ट्रीटमेंट करेंगे जो अप्रैल में किया है. इस समय भी आप वही सब ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आप लेट हो जाएंगे, इसलिए we'll prefer doing all these operations in March, April. People start doing it from February also, but to be on the safer side, एक बार frost खत्म हो जाए ना, तब आप ये सब operations अपने plant पे करना शुरू करिए. और क्या होता है इस समय, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, you know what happens is कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग उनकी थोड़ी कम हो जाती है. तो उससे आप वो मत डिसहार्टन मत होइए. जब एक बार थोड़ा सा ठंडा पड़ने लग जाएगा, थोड़ा सा बरसातों के मौसम आ जाएंगे, तो आपका सेकेंड फ्लश फिर से इसमें शुरू हो जाएगा. आते हैं जून में, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, और पीरियड प्लांट का स्टेटस क्या है, समर है, तो वो ग्रोथ में ही है. तो जब ग्रोथ में ही है हमारा प्लांट, तो हम सेम एज अबव करेंगे. क्योंकि अगर बारिशों पे डिपेंड करते हुए आप उस पे वाटर मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली करेंगे. और फिर क्योंकि अब ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स है, तो व्हाट विल वी डू, वी विल यूज फंजिसाइड एंड सम दिस थिंग आल्सो. फंजिसाइड सिस्टेमिक देंगे. सिस्टेमिक जो होती है वो आप पानी में डाल के जड़ों में देते हैं, और वो रूट के थ्रू सारे सिस्टम में पहुंच जाती है. तो वी विल गिव सिस्टेमिक बैविस्टीन इन द मंथ ऑफ जून. और जुलाई में मॉनसून्स अच्छे हो जाते हैं, सेट इन हो जाता है. तो इस समय क्या होता है, ये पीरियड भी इसके ग्रोथ का है. तो पानी आपको देख के देना है कि कितनी बारिश हुई है, अकॉर्डिंगली. आपका 2-3 दिन 4 दिन भी पानी आप नहीं भी दोगे ना, तो आपका एडेनियम कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है आपके एडेनियम को. और इस समय क्या होता है कि ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टेम्स जो है वो रॉट तो नहीं कर रही है. उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जैसे ये है,
तो आपको ये हम देखते रहिए जरा सा फील करके इसको, ये पल्पी तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, पल्पी तो नहीं हो रहा है। अगर ये पल्पी हो रहा है मान लीजिए, तो इमिडिएटली इसको पानी तो बिल्कुल भी मत दीजिए, तब आप इसको हटा के ऐसी जगह रख दीजिए जो इस पे पानी न पड़े। और अगर आपका वो जो ब्यूटीफुल कॉडेक्स है, कई बार क्या होता है वो पल्पी होने लगता है क्योंकि पानी इतना है और उसका निकासी नहीं है, आपका सॉइल ठीक नहीं है, दैट मीन्स। तो आप क्या करिए, पूरा प्लांट अपरूट कर लीजिए, उसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। और अगर आपको कहीं इन्फेक्टेड एरिया कैसा होएगा, ब्लैक कलर का होगा, जहां पे रॉट क्रीप इन करना शुरू कर रहा है, तो वो ब्लैक एरिया जो होगा उसको तेज धार वाले चाकू से निकाल के स्कूप कर दीजिए, अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट सीइंग व्हाइट क्लीन फ्लेश ऑफ द प्लांट। जब वो आपका वो निकल जाता है तो उसमें बैविस्टीन या कोई भी फंजिसाइड लेके खूब अच्छी तरह रगड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल रगड़ के उसको छाया में रख दीजिए जब तक कि वो बिल्कुल सूख ना जाए। जब वो हो जाएगा, बारिशें खत्म हो जाएंगी, फिर आप अपने पौधे को वापस रिपोर्ट करिए। ये ऑपरेशन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बारिशों में ही करें, ये कभी भी हो सकता है। आपके ये पल्पीनेस जो है, सॉगिनेस जो है, ये आपके कभी भी क्रीप इन कर सकती है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आप फौरन से पेशतर अपने प्लांट को निकालिए अगर कॉडेक्स में है, और अगर ब्रांच है तो ब्रांच ऊपर से या कहीं से भी जो खराब होने लगी उसको इमीडिएटली remove that branch, snip it off with a very sharp and this sterilized instrument, और वहां पे फिर आप थोड़ा सा फंजिसाइड लगा दीजिए। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कीप चेकिंग योर प्लांट, जिसको बोले ना नर्व्स, ब्रांच सिस्टम, मैं तो नर्व्स ही बोलूंगी, वो प्लीज आप चेक करते रहिए इस मौसम में, स्पेशली कि वो सॉगी तो नहीं हो रहे, पल्पी तो नहीं हो रहे हैं। फिर आते हैं जुलाई में, मैंने आपको बता दिया। अगस्त में अगेन ग्रोथ का पीरियड है, मॉनसून का पीरियड है, सो एवरीथिंग विल बी द सेम। सॉरी everything will be the same. Now comes September, and again autumn starts, the season is changing, so the period, the status of the plant is in growth still, so it will be the same as July, August, and पानी थोड़ा हम लोग फिर अब कम देने लगेंगे क्योंकि बारिशें भी होके चुकी हैं और विंटर भी थोड़ा सेट इन कर रहा है, तो पानी कम देंगे। एंड अगेन we will repeat, because the season is changing, we will again repeat the Bavastine and insecticide, उसको भी हम लोग फिर से रिपीट करेंगे एक बार। तो ये आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद में अक्टूबर में डोरमेंसी में धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहा है वो, तो स्लो ग्रोथ हो जाएगी। एंड सेम एज सितंबर, avoid repotting, avoid pruning, avoid everything, don't disturb your plant, let it go into rest with peace। you अपने जाड़े अच्छी तरह निकाल दें, no manuring, nothing to be done in these 2-3 months, that is October, November, December, January, कुछ नहीं करना है। February और January का तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ करना नहीं है। तो ये आपका yearly calendar हो गया कि आपको अपने एडेनियम को कैसे बचा के रखना है। So with that I come to an end, and if any questions ले लें, questions है chat में, वो देख अच्छा लीजिए। मैं देखूं? मैं बता देती हूँ, एक मिनट। नहीं, अच्छा देखो, थैंक यू। सोइंग सीड क्वेश्चन हो गया, अबाउट द elongation of the stems and bushy growth वो बता दिया मैंने। stems are falling down one side, so I told you, वो तो जब आप तो धूप में नहीं रखोगे उनको तो obviously your stems will be elongated, and जब बहुत लंबी हो जाएंगी तो गिरेंगी अपने आप। तो उसका उपाय मैंने आपको बता दिया है। आप सितंबर में अभी मत करिए, जब बारिशें खत्म हो जाती हैं तब आप उसमें पानी प्रूनिंग कर दीजिएगा उनकी। कैन वी गिव NPK 19-19-19 in every month? हाँ, आप February onwards ना, every month तो it will be too much. If you have not reported your plant, then you can give. Otherwise, if you have reported your plant, then it's not necessary to give, or give it only if you have reported your plant in February or March, then give it in
अप्रैल मई में एक बार दे दीजिए, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है। सारी खुराक आपको 10 किलो गोबर की खाद में बहुत मिल गई है उसके पौधे को। ज्यादा ओवरडोज देने से भी उसमें फूल जो है वो इफेक्टेड होते हैं। रिमेम्बर दिस, ज्यादा बहुत कहते हैं ना हमारे सब कुछ कर रहे हैं, खाद भी दे दिया, ये वो दे दिया, लेकिन फूल नहीं बन रहे, तो ओवरडोज भी जो खुराक की होती है वो भी हैम्पर करती है आपके फ्लावरिंग को। अडेनियम कॉर्टेक्स इज, बेटा ये स्वाति जी, ये कॉर्टेक्स नहीं होता, कॉर्डेक्स होता है, CAUDEX, कॉर्डेक्स है ना। आप इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। Adenium cortex is soft, not hard. What should I do? I told you the reason and this thing also, remedy also. So some branches are losing leaves and tip are turning black. That is again, I told you, leaves losing leaves is because of again overwatering, and the tip are turning black. That means fungus is setting in. Please chop off those tips. Keep your plant this thing safe from water and apply fungicide on that. Should we tie the branches which are long? अगर बहुत ज्यादा गिर रही है और आपको लगता है आपका शैलो पॉट में है प्लांट और वो अपरूट हो जाएगा, तो आप उसको थोड़ा विंड से सेव करिए। और ब्रांचेस को एज सच ट्राई करना है तो आप कर भी दीजिए, कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इतनी हवा में कितनी लंबी है ब्रांचेस, वो अपरूट तो नहीं है, नहीं तो आप उसमें एक स्टेप वो उसका भी सपोर्ट दे सकते हो। क्या कहते हो उसको, थोड़ा स्टेक का, हाँ, वो भी एक सपोर्ट आप उसमें लगा सकते हो आराम से। बांधने से भी क्या होगा सिमी जी, कि वो फिर भी वो लटकी ही रहेंगी, उनको सपोर्ट चाहिए, तो स्टेक से आप उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करिए। इला जी, वन लेडी वांट्स टू नो, जो आपने अपना प्लांट दिखाया था जिसकी ब्रांच लंबी लंबी होती जा रही है, वुड यू कट इट्स लॉन्ग ब्रांच? हाँ, of course I will, but not now. Yeah, not now. Then that answers your question. Then Parul wants to know how to propagate from cuttings. कटिंग काट लीजिए और उसको ना आप अच्छा एक मिनट, अच्छा कटिंग काट लीजिए और उसको 2 दिन ऐसे ही रख दीजिए। इमिडिएटली काट के जैसे हम लोग लगा लेते हैं पानी में डाल के, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ सक्युलेंट, इसमें सैप होता है, जैसे मैंने बताया उसके अंदर पानी होती है। लेट इट ड्राई फॉर 2 days, लेट द कैलस फॉर्म, एंड जब वो कैलस फॉर्म हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, देन यू डिप इट इन एनी रूटिंग हार्मोन और उसको आप लगा सकते हैं आराम से। पॉटिंग मिक्स भी आप उसका जो है स्टेम कटिंग का आप यही बना सकते हैं जो आपकी सीड सोइंग के लिए है, या खाली आप सैंड में भी लगा सकते हैं। एंड सेव इट फ्रॉम रेन्स, ऑफ कोर्स, वाटर। Then how to increase the size of cortex in a plant raised from cutting? Cortex तो बनता कम नहीं, है। कॉर्डेक्स बनता नहीं है उसमें ना, कॉर्डेक्स बनता नहीं है। फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, बट यस, over the years I've experienced that the stem itself goes so thick that no one can say it was not a seed raised this thing plant. खूब अच्छा बन जाता है, जैसे धीरे धीरे स्टेम मोटी होती जाती है ना, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता है, तो जैसे आपका बोनसाइज में हो जाता है, वैसे इसमें भी स्टेम खूब अच्छी हो जाती है, पर कॉर्डेक्स नहीं बनेगा। Okay, Ila ji, potash, super phosphate or DAP should be given for flowering? I've never used these things on adeniums. Never ever. हम आपका potting mixture ही इतना है, उसमें I don't know, हम तो खाली वो 1919 डालते हैं। Exactly, and मैंने 1919 डाल दिया आपने, तो उसमें पोटाश और वो सब कुछ तो आ गया ना, फिर you don't need, why I'm telling you repeatedly, don't give overdose, बंद करो, बदहजमी हो जाएगी, हम लोग को हो जाती है, पौधों को भी हो जाती है। वैसे नम्रता जी, आपका क्वेश्चन इला जी ने आंसर कर दिया, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर प्रोपगेटिंग फ्रॉम कटिंग्स, अभी पहले वाले ने आंसर में। बट इला जी, इफ यू वांट टू रिपीट कि राइट टाइम फॉर प्रोपगेटिंग फ्रॉम कटिंग्स। हाँ, तो हम तो इस समय नहीं करेंगे, हम तो फरवरी में ही करेंगे। आई विल वेट फॉर फरवरी, क्योंकि अब डॉर्मेंसी अभी नहीं करना है, मुझे नहीं करना। आप ट्राई कर सकते हो, जरूर करिए, करना चाहिए, आपको करना चाहिए। हम नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, फिर रिजल्ट बताइए क्या होगा, शेयर करिए एक्सपीरियंस। राइट, किस चीज का रिजल्ट? नहीं, अगर वो अभी ट्राई करेंगी अपना कटिंग बना के, अभी तो मत करने के, नहीं, सितंबर में ट्राई करेंगी, अभी तो बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगी। सितंबर में हो सकता है लग जाए, हो सकता है नहीं भी लगे।
अगर जाड़े जल्दी अच्छा। पड़ गए, मान लो जाड़े जल्दी पड़ गए, तब दिक्कत हो जाएगी। अगर जाड़े जैसे नवंबर में जाके पड़े तो रूटिंग भी हो सकती है उसमें। लेकिन अगर आप फरवरी में लगाएंगे तो श्योर शॉट है कि काफी लंबा उसका पीरियड है, ग्रोथ पीरियड, तो हो ही जाएगी, कटिंग लग ही जाएगी, कोई उसमें डाउट ही नहीं रहेगा। तो व्हाई टेक अ चांस अननेसेसरली फॉर वेट फॉर 2-3 months if you are not in a Okay, can the plant be repotted and pruned at the same time? yes, first do pruning, उसका जो वजन है आप पहले वो कम कर दीजिए, एंड उसके बाद में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रून करने के 2-4 दिन रुक जाइए, जिससे कि एक शॉक तो लगता है, इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑपरेशन, तो शॉक लगता है प्लांट को, उससे ओवरकम कर जाए, उसके 2-4 दिन बाद आप उसको रिपोर्ट कर लीजिए। पहले प्रूनिंग फिर रिपोर्टिंग, ऑलवेज। एनी मोर क्वेश्चंस फोक्स? वैसे तो ईला जी ने इतना एग्जॉस्टिव लेक्चर दिया है, अगर आप लोगों ने सबने ध्यान से सुना हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को और जो क्वेरीज आएंगी FSN में उनको आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर भी इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज add to the chat right now. Ila ji, aapko, before I say thank you, I have an important announcement to make that Chrysanthemum Floriculture Society Noida is planning to hold a chrysanthemum show this year on 2nd and 3rd of December. It will be in association with DLF Mall of India. And we are requesting all the members to please try to grow chrysanthemums of nice quality in a nice and participate. It would be appreciable if the members or entries. We are approaching other parties who will be going into the experts group, but as amateurs, we request all the members to make the effort to participate. It will be a nice effort and appreciated by all of us. And now I shall thank Ilaji for a lovely lecture, very exhaustive. And I think people did take notes.